Students, now we'll see characteristics of waves. So first is wavelength. See, wavelength is actually length of one wave. But how we'll decide wavelength? It is actually distance between two particles having phase difference 2 pi radian. And its unit is meter because it is a distance. So its unit is meter. Now you can see here in this figure, the distance between this and this particle, the phase difference between these two particles is 2 pi, and so the distance between these two particles is known as wavelength. Now how I have written all these angles, we'll just see that. Suppose if we'll compare all different types of motions, how we can draw. So suppose if this is a pendulum, and this is its mean position, and it will oscillate like this. ठीक है, यहाँ से ऐसे जाएगा, then again it will come back, again go on this side and again come back. So this is one oscillation of a pendulum. Reference particle और reference circle. Reference circle यहाँ पर होता है इस तरीके से. So suppose this is our reference circle. हमारा जो reference particle है वो इस circle पे घूम रहा होगा. SHO, simple harmonic oscillator, will be oscillating on this axis, and wave motion, how they all are connected with each other, we'll see that. Suppose see, if our reference particle is here, then our simple harmonic oscillator will be here, and the position of this reference particle will be shown by this vector. This is our reference axis. So the angular position of the reference particle with respect to this reference line is actually 0, right? Now suppose if this reference particle moves and it comes here, then at the same time the simple harmonic oscillator will go up and it will reach here. So now this vector showing angular position of the reference particle from here will get displaced here like this. And if I see the angle of this vector with respect to this reference line, then this angle is 90. So I'll write here pi by 2. Now suppose the reference particle reaches here, then the SHO will come back here. So reference particle जो है वो अपना आधा जर्नी कंप्लीट कर देता है. At the same time SHO जो है वो भी आधा जर्नी कंप्लीट कर देता है. अब हमारा ये जो वेक्टर था जो रेफरेंस पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन दिखाता था, वो वेक्टर यहाँ आ गया है. इसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू अवर रेफरेंस लाइन इज 180, दैट इज पाई. अब यही चीज मैं पेंडुलम के साथ कंपेयर करती हूं. सो सी, व्हेन रेफरेंस पार्टिकल इज हियर, SHO इज हियर, पेंडुलम विल बी हियर at the mean position. When the reference particle reaches here, SHO also reaches here, then this pendulum reaches here at the amplitude. Now what will happen? This reference particle will come here, SHO will come back here and complete half of its journey. Then this pendulum also will come back here to the mean position and complete its half journey. Okay. अब इसी चीज को अगर मुझे वेव मोशन के साथ कनेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? सी, दिस इज द मीन पोजीशन. व्हेन द रेफरेंस पार्टिकल इज हियर, SHO इज हियर एंड द पेंडुलम इज हियर. हमारा पार्टिकल का डिस्टर्बेंस जो है वो हम यहां बताएंगे, और ये जो एंगल है वो हम यहां लिख लेंगे. दिस एंगल इज 0. Now when the reference particle reaches here, SHO reaches here and the pendulum reaches here at the amplitude. तो ये भी यहाँ पर amplitude हो जाता है. So this shows you pi by 2. जब ये यहाँ से इधर आ जाता है, SHO नीचे आ जाता है और पेंडुलम भी वापस अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है, तो ये वेव मोशन भी हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे. So ये एंगल कितना है? पाई. So this will be pi. So हाफ साइकिल सबका कंप्लीट हो गया. रेफरेंस सर्कल, आवर SHO एंड आवर पेंडुलम. अब हमारा रेफरेंस पार्टिकल जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आधा साइकिल कंप्लीट करेगा.
तो SHO भी वही करेगा, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में आधा जर्नी कंप्लीट करेगा. एंड दिस एंगल, नाउ सी वी हैव टू कंसिडर दिस एंगल. दिस एंगल इज 3 पाई 2. हम पाई बाई टू ऐड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली बिकॉज 90 प्लस 90 प्लस 90 हो गया है. सो दिस इज 3 टाइम्स पाई बाई 2. ठीक है, 1 टाइम पाई बाई 2, 2 टाइम पाई बाई 2 एंड दिस इज 3 टाइम्स पाई बाई 2. सो ये वाला जो पेंडुलम है वो अब यहां पहुंच गया होगा. तो ये वेव मोशन कैसे दिखाएंगे हम? लाइक दिस वे. सो दिस एंगल इज 3 पाई बाई 2. अब क्या होगा, हमारा जो रेफरेंस पार्टिकल है वो यहां पहुंच जाएगा वापस, एक सर्कल कंप्लीट. तो जो हमारा SHO यहां पर था ना, वो भी यहां से वापस चला जाएगा, उसका एक वाइब्रेशन खत्म हो गया है. ठीक है, सो अब मुझे एंगल अगर दिखाना है तो ये कंप्लीट एंगल दिखाना पड़ेगा. सो वो एंगल यहां हो जाएगा 2 पाई. सो जब हमारा रेफरेंस पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करता है, हमारा SHO एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है और हमारा जो पेंडुलम है वो भी यहां से वापस आ जाता है और अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर देता है. वेव मोशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे थे वो भी यहां से अपना एक पल्स खत्म कर देता है. सो ये एंगल कितना हो गया? 2 पाई. सो नाउ जस्ट सी, दीज आर द 2 पॉइंट्स हैविंग फेज डिफरेंस 2 पाई. अगर कोई पार्टिकल यहां पर है, मतलब कि यहां पर है, तो उसका एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन, जिसे हम फेज कहते हैं, वो कितना होगा? 0. और अगर कोई पार्टिकल ये एक चक्कर खत्म करके यहां पर पहुंचा है, उसका फेज कितना हो जाएगा? 2 पाई. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्टिकल, then this particle's position is this and its phase is 0. If I am talking about this particle, उसकी पोजीशन तो यहां होगी, पर हमें ये बात याद रखनी है कि वो एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद यहां पर पहुंचा है. सो ऑलरेडी वो कितना एंगल घूम चुका है? 2 पाई जितना एंगल घूम चुका है. सो ऐसे कोई भी 2 पॉइंट्स जिनके बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई है, उनके बीच के डिस्टेंस को हम बुलाते हैं वेवलेंथ. ठीक है, तो हम आगे भी देखते हैं. सिर्फ इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही वेवलेंथ बोलें ऐसा जरूरी नहीं है. ये तो वेवलेंथ है ही, पर आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा होगा कि अगर हम वेव ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, देन द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive crest और डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive trough इज ऑल्सो नोन एज वेवलेंथ. तो उसके लिए क्या करेंगे? So see now, just see the figure over here. ये representation तो आपने सीख लिया. So this was pi by 2. This was 2 times pi by 2. आप ये फिगर में से देख सकते हो ना. This is pi by 2. 90. अगर मैं ये टोटल ले लूं तो कितना हो जाएगा? 2 times pi by 2 हो जाएगा. 90 plus 90. यहां पर पहुंच जाएंगे तो this will be 3 times pi by 2. यहां पहुंच जाएंगे तो this will be 4 times pi by 2. So on, add करते जाओ. See, this is 1 time pi by 2. This is 2 times pi by 2. 3 times pi by 2. 4 times pi by 2. 5 times pi by 2. 6 times pi by 2. 7 times pi by 2 and this is 8 times pi by 2. तो इस तरीके से मैंने ये वैल्यूज लिख दिए हैं. Now the definition of the wavelength was the distance between 2 points having phase difference 2 pi. सो यहां देख सकते हैं कि इसका फेज 0 है, इसका फेज 2 पाई है. तो डेफिनेटली 2 पाई माइनस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई जितना फेज डिफरेंस हो जाएगा. सो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वी कॉल इट वेवलेंथ. इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड दैट the distance between 2 consecutive crest or the distance between 2 consecutive trough is also known as wavelength. तो ये दोनों consecutive crest हैं, इनके बीच का phase difference भी अगर मैं calculate करूं, यहाँ पर this is 5 pi by 2 and this is pi by 2. If I calculate the difference then it is 2 pi. So again ये distance जो है उसे हम wavelength बुलाते हैं. Similarly अगर मैं इन दोनों के बीच का भी calculate करूं, 7 pi by 2 minus 3 pi by 2, again it gives me 2 pi. So ये तीनों तीन जो हैं वो क्या देते हैं हमको? वेवलेंथ, एंड दे विल बी इक्वल ओनली, एंड द SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ विल बी मीटर.